Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके, नोट्स आप लोगों ने देखा था? लास्ट लेक्चर का नोट्स मिल चुका है? नहीं मिला है? अब नहीं बोल रहे हैं आप लोग? यस सर, आ गया। आ गया है तो आपने मतलब देखा कि नहीं? नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर को पढ़ा है? बिकॉज उसी का यूज़ होने जा रहा है अभी इस लेक्चर में. ओके, सो we need to start now. So today is lecture number 31, Engineering Materials and Mechanical Properties, part number 2. We have discussed how the mechanical properties are defined on the basis of stress and strain. Okay, so what do you think? If there is more strain, if there are two materials, one is called A and second is called B. So if there is more strain in A material than B, strain, I'm talking about strain, okay, without fracture, टूटा नहीं है लेकिन उसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, तो आप क्या बोल सकते हो कौन सा मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रेन ज़्यादा है तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रेन कम है तब स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं. चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ओरिजिनल डायमेंशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, is not going to be vary. Only the change in dimension can be vary depending upon the various different type of material. If we applied same amount of force, okay, so if the strain is more, what do you think? Material is strong or lesser strong? जवाब नहीं आ रही है. More So strong, sir. I have started teaching the deep and dumb students, right? Those who are not able to listen, those who are not able to speak, so they are disabled. So it is fine for me. It is very easy to teach. It is not so much challenging. Very good. So let's start with the engineering materials. What is engineering materials? It is the substance which are useful in the field of engineering or called engineering materials. But I think this definition is not sufficient to understand what is engineering materials, right? We can say that we also can say that the material which is used by engineers, that materials are known as engineering materials. This definition is also rubbish. Okay, so what should we have for the engineering materials? We cannot define by the statement. We have to understand what is engineering materials, right? Engineering materials are those materials which are comes under several loading, force, moment, torque. If we change its shape, size, and also most importantly strength. If we change its shape, size and strength of the material, that material is done by only using engineering technologies. Engineering technologies. Okay. And that engineering technology are applied by engineers. Right. So anything that a material which we have, we are not going to increase the strength.
We can decrease the strength, we can increase the strength, right? And that if that material is allows to do so, मतलब ऐसा मटेरियल जो हमें शेप को चेंज करने दे रहा है, साइज को चेंज करने दे रहा है और स्ट्रेंथ को भी चेंज करने दे रहा है, that type of material is engineering materials, right? So why we are going to change these shape, size and strength? Why? अब तो बोलो, क्यों हम चेंज करना चाह रहे हैं? कोई मटेरियल है ऐसे पड़ा हुआ है तो उसको हम शेप, साइज और स्ट्रेंथ क्यों चेंज करना चाहेंगे? To check out its elasticity. Why we are going to check out its elasticity? So human resource के लिए करो sir. Human resource like जैसे रेलवे ट्रैक से सर. railway tracks. Good. Means for the sake of application which human is going to be used. Not human right now, means anything which are comfortable for any human beings or any life, that is that makes us to change its shape, size and strength. Means if we have a material like a block, okay, a block is there and we need to make a utensils, a plate, okay, a plate from this block. So what are the manufacturing processes required to do so? But we have to understand what is the strength of this material and what is the strength of this plate, right? प्लेट का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, प्लेट का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, प्लेट दिखने में कैसा होना चाहिए, प्लेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए. बट दिस ब्लॉक मटेरियल which we can say that this is a raw material, right? This is raw material. तो रॉ मटेरियल के पास अभी उतनी प्रॉपर्टीज नहीं है. इसमें हो सकता है रस्टिंग हो जाए, ठीक है, रस्टिंग हो जाए, ये हो सकता है कॉर्नर से ब्रेक हो जाए, ये हो सकता है कि इसके धीरे धीरे कहीं इसके साइड में अगर दूसरे ब्लॉक रखे गए हों तो दोनों के बीच में वियर एंड टीयर आउट होगा तो इसका मटेरियल रिमूव हो सकता है, ठीक है. कई जगह पे यहाँ पे कई जगह डिम्पल्स पड़ सकते हैं इसके ऊपर. So these type of material is not so much having a strength, not a very good in a look, okay. So we need to make the plate from this material, so we have to apply so many engineering technologies by engineers, right? So this material, if this material can be converted into the application point of view, then these materials can be known as engineering materials, right? So you have to give some important terms, we have to give some application examples and you have to draw this flow diagram also, okay, to understand what is engineering materials, okay. So on the basis of some following consideration, we have to select, we can select the material for various application, right? So we have to check out its properties of the material. The properties can be mechanical, can be physical, can be chemical and can be manufacturing properties, right? And manufacturing properties comes from the mechanical properties, okay, depending upon the mechanical properties. Manufacturing properties are depending upon the mechanical properties. If you understand what is mechanical properties, what are the mechanical properties, you can easily understand manufacturing properties, okay. अभी तक सही है, समझ में आ रहा है? आ रहा है बच्चों? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो आपको पता होगा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मटेरियल, अगर प्योरेस्ट फॉर्म बना दिया जाए, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म, सपोज ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है और कुछ एक मटेरियल है विच इज हैविंग द सेम मटेरियल आयरन बट इट इज हैविंग सो मेनी इम्प्योरिटीज. आप लोगों को पता होगा मेटलर्जिकल प्रोसेस करके उसको प्योर बनाया जाता है, बट प्योर नहीं हो पाता है. तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है. आपको पता होगा जो भी प्योर है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो अपनी प्योरिटी को कम नहीं करना चाहता है. दैट मीन्स इट इज़ स्टेबल मटेरियल. और स्टेबल मटेरियल अपने शेप को, साइज को चेंज नहीं करना चाहेगा. स्टेबल मटेरियल अपनी एनर्जी को सबसे कम रखना चाहता है. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करने देगा, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होने देगा, अपनी बॉन्ड को तोड़ने नहीं देगा. बॉन्ड को तोड़ने का मतलब क्या है कि इसको दो टुकड़ों में कर नहीं सकते हैं आप,
फोर्स लगा के या फिर कटिंग प्रोसेस अप्लाई करके आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। ओके, अगर हमारे पूरे ओवरऑल इन्वायरमेंट में अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मटेरियल मिलने लगे तो, और मटेरियल वो ब्लॉक्स के फॉर्म में या फिर किसी सर्कुलर किसी ना किसी मतलब बल्क में ही मिलेंगे आपको, तो बल्क से आप इस प्लेट को कैसे बनाओगे? अगर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो प्लेट कैसे बनाओगे? कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे तो प्लेट बनेगा? वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो स्टेबल है, वो प्योर है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो प्लेट तो बना ही नहीं पाओगे आप, कोई भी चीज़ बना ही नहीं पाओगे। चेयर है, चेयर में आप देखोगे पाइप होता है, पाइप को बेंड करना पड़ता है। बेंड मतलब हमेशा के लिए एक तरह से उसका नया शेप दे दिया, तो वो नया शेप तो होने नहीं देगा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मटेरियल, राइट। तो वी विल डिस्कस इट लेटर कि कैसे हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए या कम स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए, वी विल डिस्कस। So mechanical properties में strength and ductility सब we will see in a very detail mechanical properties. I'm going to show what is physical property. Density, specific, आप लोग सबको जानते हो ये density, specific heat, thermal expansion, conductivity, melting point. These are the physical properties. Chemical properties, oxidation नहीं होना चाहिए, या फिर oxidation क्या होता है मतलब rusting भी एक oxidation process है. Corrosion and oxidation is sometimes aluminium getting oxide on its surface, because it is not meaning of corrosion. corrosion होता है आयरन पे, बहुत ही प्रीडोमिनेंटली आयरन पे होता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है। ओके, फेरस ऑक्साइड बनता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बनता है। तो आयरन पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आयरन बहुत ही अनस्टेबल है, जब तब अनस्टेबल होता है जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हो, तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है और केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही रिएक्टिव होता है, राइट। सो फ्लैमेबिलिटी मतलब आग लग जाना, आग लगने की क्षमता ज़्यादा हो, कैपेसिटी ज़्यादा है फायरिंग की, तो आग लग जाएगी तो वो मैकेनिक जो मटेरियल हमने सेलेक्ट किया होगा उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी बदल गई तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिस एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किए थे। तो वैसे ही फ्लैमेबिलिटी कम होनी चाहिए। टॉक्सिसिटी, सम लिक्विड और गैसेज आर, जैसे हमने रेफ्रिजरेंट देखा था, तो उसकी टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, राइट। So that is also a mechanical engineering materials. मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा 5th यूनिट में था उसमें देखेंगे। फॉर्म्ड का मतलब है, आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ, वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं, लोहार, ये क्या करता है, हैमर कर करके इसको प्लेट बनाता है, ठीक है, शेप चेंज करता है। तो दैट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नोन एज फॉर्मिंग। तो फॉर्म की करना आसान हो जाए तो वो बोलेंगे कि वो मटेरियल बहुत ही अच्छा फॉर्मेबल है, राइट। कास्टिंग आपको पता होगा, मटेरियल मेटल्स को पिघला के उसको नया शेप देना, ठीक है, पिघला के आपने लिक्विड बना दिया, लिक्विड अब उसको किसी भी सांचे में डालोगे, उसको बोलते हैं पैटर्न, या फिर उसको बोलते हैं रिवर्स शेप ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, रिवर्स शेप, ठीक है। रिवर्स शेप मतलब जहाँ पे सॉलिड है वहाँ पे खाली जगह होगा, उस खाली जगह में अगर आपने लिक्विड मेटल को डाल दिया और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यू विल गेट द न्यू शेप ऑफ द मटेरियल, राइट, एंड दैट इज नोन एज कास्टिंग। कास्टिंग का हिंदी क्या होती है, ढलाई, राइट। मशीन्ड का मतलब है कटिंग करके कोई ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को आपने कुछ एल शेप का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, कटिंग करोगे ना एल शेप का बनाने के लिए। तो कटिंग करके आप इस मटेरियल को इस शेप में आप जो भी शेप चाहते हो वो शेप बना सकते हो। और वेल्डिंग आपको सबको पता है, वेल्डिंग क्या होता है, राइट। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट भी हमें फोर्स करता है कि हम कैसे मटेरियल को चूज करें, राइट। इफ देयर आर टू मटेरियल से ए कॉस्टली एंड बी चीपर, then we have to select the material which will fulfill our requirement. If both A and B fulfilling our requirement, then we will select B. Okay, requirement हमारी पूरी fulfill कर रहा है A और B दोनों, तो cheaper कौन सा है, B, तो we will select only B because ultimately engineers are going to get profit from its manufactured product. मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की को प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, जब वो
चीपर प्रोडक्ट यूज करेगा, बट चीपर प्रोडक्ट मस्ट बी इंश्योर दैट इट्स फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। जहां भी वो प्रोडक्ट यूज किए जाने वाला है और उसकी लाइफ ए और बी दोनों की बराबर है, बट ए इज कॉस्टली। ठीक है, जस्ट लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ, जैसे राजस्थान में आपको पता होगा स्टोन ज़्यादा है, राइट? स्टोन्स ज़्यादा हैं, am I right? Yes. Yes, sir. ओके, एंड सपोज Yes, sir. समवेयर इन, मान लो कि कोई ऐसा स्टेट बताइए जहाँ पे स्टोन कम है। सर यूपी। अच्छा, यूपी में स्टोन कम है, यहाँ पे ट्रीज ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो डोर्स के फ्रेम बनाए जाते हैं साइड में, डोर्स के फ्रेम बनाए जाते हैं Yes, sir. साइड में। ठीक है, Yes. तो वुड भी काम करेगा, स्टोन भी काम करेगा इस फ्रेम के लिए, am I right? Yes, sir. आई थिंक स्टोन ज़्यादा ही अच्छा काम करेगा यहाँ, मतलब मॉइस्चर से ख़राब नहीं होगा, इसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ फ़ायदा है इसका। वुड का फ़ायदा ये है कि समटाइम्स इफ़ यू वांट टू चेंज योर डोर यू कैन यूज ट्रीज so that you can remove easily that wooden frame, right? Okay, so but यूपी वाला स्टोन तो यूज नहीं कर सकता ना, स्टोन उसके पास भी है, स्टोन आ जाएगा यहाँ से राजस्थान से, लेकिन वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, Costly पड़ेगा. कॉस्टली होगा। वुड यहाँ से यहाँ जाएगा, वो कॉस्टली पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी द कॉस्ट विल बी चेंज। ओके, अवेलेबल जहाँ पे ज़्यादा है वो चीपर होगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब वेजिटेबल्स भी खरीदने जाओगे, अगर मार्केट में जाओगे, बहुत ही मेन मार्केट में, मतलब शहर के मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे कॉस्टली मिलेगा, लेकिन कहीं गांव में जाओगे वहाँ पे चीपर मिलेगा। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी है। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पे। तो थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी। सो सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट बोथ आर कोरिलेटेड, राइट? Service in life of material, dimensional stability of the material, wear, corrosion and short, मतलब सर्विस हमको कितना दिन तक चाहिए। कोई सपोज मुझे कोई घर बनाना है, उसमें एक डोर बनाना है, बट हमें ये भी सोचना है कि ये डोर मैं कब तक यूज कर सकता हूँ, मतलब इस घर में कब तक मैं चेंजिंग नहीं करूँगा इसमें डोर में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन चूज द मटीरियल, राइट? Because we know that there is a wear, corrosion that will shorten the life. If you are planning for making the door for a long period of time, so we are not going to use wooden material, right? So on the basis of the service in life of the material, we can choose the material. Appearances, ये आप सबको aesthetics आपको important है, ये भी color of the surface, texture, roughness, ये भी बहुत ज़्यादा important है। आपको पता होगा कि जैसे जो साइड फ्रेम बनते हैं स्टेयर्स के ऊपर, साइड फ्रेम्स स्टेयर पे बनते हैं ना, स्टेयर पे, सीढ़ियों पे साइड में बनते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा वुडन अच्छा रहेगा या लोहे का बना दिया जाए या स्टील का बना दिया जाए, तो टेक्सचर कैसा, कौन सा बढ़िया रहेगा? तो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाए, तो पहले एल्यूमिनियम का था, फिर एल्यूमिनियम पता चला कमज़ोर है, अगर उस पर हाथ रखते रखते जाएंगे तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे टूट जाएगा या फिर मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। बट वी नो दैट स्टील इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर, बट स्टील इज़ मेड अप ऑफ आयरन। ओके, आई थिंक so many students are not aware of it, that steel is iron, but steel is made up of iron। पता है आपको, स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, ये पता है कि नहीं पता है? पता है। तो आयरन में क्या चीज ऐसा ऐड किया जाता है कि स्टील बन जाता है, वो है कार्बन। कार्बन परसेंटेज चेंज करते रहते हैं, तो कास्ट आयरन भी मिलता है, स्टील भी मिलता है, बहुत तरह के स्टील मिलते हैं। अब स्टेनलेस स्टील बनाना है, स्टेनलेस स्टील बनाना है, तो उसके लिए कुछ और भी ऐड किया जाता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकेल, तो इससे बनते हैं सब स्टेनलेस स्टील, जिससे क्रोमियम जो है इम्पॉर्टेंटली ये यूज होता है कोरोजन रेसिस्टेंस के लिए, तो उसमें कोरोजन नहीं होता है।
but we know that iron is more stronger than aluminium. Okay, so we are going, और आयरन हमें एबेंडेंसी में भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इसकी वेट इतना ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसका वेट ज़्यादा हो जाता है। तो वेट ज़्यादा होता है तो इस हिसाब से आपको कम ही मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपये का भी आयरन है पर केजी और 100 रुपये का एल्यूमिनियम है पर केजी, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा 1 केजी में? आयरन आयरन का कैसे वॉल्यूम ज़्यादा? एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा बेटा। डेंसिटी क्या होता है? मास आयरन अपॉन का वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेंसिटी आयरन का ज़्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा ना, ठीक है, तो उस समय उतना काम नहीं हो पाएगा आयरन से, तो आयरन आपको और भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी लगभग कॉस्ट लगभग सेम हो जाते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी अपॉन द टेक्सचर और वी कैन से द स्ट्रेंथ वी कैन चूज द मटेरियल। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, we have classified the materials in metals and non-metals. Okay, all are these are engineering materials. कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो छूट गया हो, बहुत ही कम मटेरियल हैं जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में नहीं आते हैं। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा मटेरियल जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में नहीं आता है? कौन सा मटेरियल है? सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं। कोई छूटा है बताइए, यस और नो? कोई मटेरियल छूट गया है क्या? नहीं। ओके, so we were focused on metals first, and metals also categorized in two types, ferrous and non-ferrous. तो ferrous का मतलब ही है contains iron, non-ferrous मतलब contains no iron. So in the metals we can say the iron is made up if there is some impurities. Impurities is intentional. Intentional मतलब हमने जानबूझ के impurity की है, right? So to get the different type of steel and different type of iron. Wrought iron is the purest form of the iron. It is purest form of the iron, 99% pure iron, Fe, ठीक है, रॉट आयरन। उसके बाद हमने उसमें कार्बन ऐड करते गए तो स्टील बनता गया, फिर दूसरे मेटल को ऐड किया तो नया स्टील बना, दैट इज एलॉय स्टील। अगर हमने कार्बन के अलावा कार्बन मिलाया इसमें और उसके अलावा क्रोमियम मिलाया, कॉपर भी मिला दिया, तो वो नया बन गया, दैट इज नोन एज एलॉय स्टील। कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 4%, almost 4% iron carbon is added to the iron, then that iron becomes cast iron. Okay, then non-ferrous contains no iron, you know that, aluminium, copper, lead, silver, tin, zinc and many more. Okay, these are non-ferrous materials. Then we comes to non-metals. Non-metals आपको पता है, polymers and ceramics. Ceramics are also the type of engineering materials. Polymers आपने पहले भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. There are two types of the polymers. First is the thermosetting polymers and second is the thermoplastic polymers. Right? Thermosettings and thermoplastic. Why it is plastic written here? Thermosetting polymers and thermoplastic polymers, right? So there are examples of the thermosetting polymers. क्या thermosetting polymers का मतलब क्या है? What is the meaning of thermosetting polymers? Anyone? Once made, its shape cannot be changed. When its shape will changes, what Its we shape will do? cannot. So What जैसे we will do to the material, and so it will change its shape. so when manufacturing, No. Sir, when we Please provide things to elaborate the name of the polymer. Name क्या है? Name क्या लिखा हुआ है? नाम क्या है? सर Bakelite. आफ्टर हीटिंग
What is the complete name of this polymer? Thermosetting polymer. I have told you already that in mechanical engineering, whatever the topic or terms is coming, the 90% of terms can be defined by its name only. Sir, Thermal after power. heating. After heating, right? After heating, it will set. सेट मतलब जो शेप पाएगा वो हमेशा के लिए रह जाएगा उसका. इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इट इज नॉट गोइंग टू बी रीयूज, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just stick with the name. So these are the examples that are bakelite, polyester, epoxy resins, aldehyde, and thermoplastics which can be reused. Thermoplastic, PVC, polythene, acrylic and resins, right? Then the ceramics we know that the ceramics are refractories. मतलब आपने देखा होगा कई जगह पे यूज किए जाते हैं. सपोज यू कैन से refractories means tiles, the material of the tiles inside of the surface, inside from the surface, not the surface is refractories, inside of it is refractories. कई जगह ये यूज किया जाता है फर्नेस के लिए, फर्नेस के वॉल बनाने के लिए, ताकि अंदर का हीट अंदर ही रहे, बाहर ना जाए. ओके, देन एब्रेसिव आपने देखा होगा ग्राइंडिंग व्हील्स, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा अभी तक ग्राइंडिंग व्हील्स, जहाँ पे कहाँ पे देखा, कहीं आप लोग बताइए कहाँ पे देखा आप लोगों ने ग्राइंडिंग व्हील्स? ये घर वाले वो ग्राइंडिंग मशीन नहीं, जहाँ पे किसी सरफेस को फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है. कैंची, नाइफ को शार्पन करने के लिए यूज किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील्स. उस पे होते हैं ये व्हील्स है, और इसके ऊपर लगाए जाते हैं एब्रेसिव मटेरियल. एब्रेसिव मटेरियल इज आल्सो मेड अप ऑफ लाइक sand and some adhesive particle which make the sand stick together and come over the surface of a grinding wheels. And this grinding wheels is attached with the motor and it will rotate. And if you want to finish some already corroded material, then it will remove the corroded surface from its surface and it will finished, means surface finished, right? Then glass, everyone knows that. Cement, concrete, these are the ceramic non means these are also engineering materials. The ceramics comes from the non-metal, and it is non-metal and it is engineering materials because we are going to use for the engineering applications. Okay, I think it is very much clear to all. Okay, can we move? Yes. Yes. Now we comes to the mechanical properties. Now, the characteristic of the material that describe the behavior under the action of external load and referred as a mechanical properties. The common mechanical properties are as follows. I will see. I want to ask you something, means I want to discuss something that, देखिए ये मटेरियल है, पेन दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब मैं इस पे पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? ये क्या करेगा? ये टूटने नहीं दे रहा अपने आप को, मतलब रिस्पांस दे रहा है हमको, रिस्पांस दे रहा है ना कि ना तोड़ो मुझे, मैं और भी फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स लगाता जा रहा है. अब मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ लेकिन ये टूट गया, ठीक है? टूट गया. तो जिस फोर्स पे ये टूट गया है, जिस फोर्स पे टूटा है, डिवाइडेड बाय दिस एरिया, क्या निकलता है हमको? स्ट्रेस. इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है कि फोर्स अपॉन एरिया. बट अगर हम फोर्स को मैक्सिमम रखें फ्रैक्चर से पहले, एफ मैक्स डिवाइडेड बाय द एरिया, इनिशियल एरिया, दिस विल बिकम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. अब मैं यहाँ पे एस लिख सकता हूँ, मतलब स्ट्रेस तो जनरेट होता जाता है, लेकिन जब वहां पे ब्रेक हो जाता है मटेरियल, एट दैट टाइम ऑफ द स्ट्रेस, एट दैट टाइम द स्ट्रेस विल बिकम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, राइट? सो स्ट्रेंथ इज आल्सो डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
Okay, so the stress can be different type of there are different type of stresses depending upon the loading condition. We are applying the normal force. Normal force means मैं force surface cross section area के perpendicular apply कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं normal surface. तो normal surface is same as the perpendicular surface, और मैं उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस. सो दिस इज नोन एज अ नॉर्मल स्ट्रेस. एंड नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक टेंशन और एक होता है कंप्रेशन. ठीक है, तो टेंशन में अगर टूटा है तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, और अगर कंप्रेशन में अगर मैं इसको प्रेस करता जाऊं, कंप्रेस करता जाऊं, तो ये बर्स्ट हो जाएगा, बीच में से फूट जाएगा. इसको बोलते हैं फूट जाना, बर्स्टिंग. ठीक है, बर्स्टिंग बोलते हैं इसको, BURST, बर्स्ट हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रेंथ. उस समय बर्स्टिंग से पहले अगर आपने जितना फोर्स लगाया है डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज compression strength, right? So first of all we are going to see the strength. I have completely defined this strength. What is strength? It is defined as the ability of the material to resist load without failure. There are two things, failure and fracture. Okay, failure and fracture. We will discuss what is failure and fracture. ठीक है, आप पॉलीथीन अगर देखेंगे, पॉलीथीन में क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूं, पॉलीथीन इमेजिन कर पा रहे हैं, पॉलीथीन को अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूं तो वापस आता है क्या? नो सर. नो. ठीक है, इसीलिए तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल है. प्लास्टिक मटेरियल में अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगा. परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होता है, राइट? थोड़ा सा स्ट्रेच किया हमने, फ्रैक्चर नहीं किया, उसको टीयर नहीं किया, फाड़ा नहीं मैंने उसको. ठीक है, तो उसको बोलेंगे वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है, बट दैट मटेरियल इज नॉट गोइंग टू बी यूज, दैट इज फेल्ड टू यूज फॉर द एप्लीकेशन. फेल हो गया अपने काम में, तो उसको बोलेंगे फेलियर विदाउट फ्रैक्चर. ठीक है, फेलियर नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ, टूटा नहीं है, बट अब वो यूज नहीं हो सकता, फेल हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेलियर. फ्रैक्चर वो तब होता है, सपोज मैंने चॉक यूज किया, चॉक को मैंने खींचा तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, खींचा मैंने, टूट गया वो, तो वो फ्रैक्चर होगा. इसका मतलब दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक तो होते हैं जो पहले एलोंगेट होते हैं, परमानेंटली डिफॉर्म होते हैं, फिर जाके फ्रैक्चर होते हैं. ठीक है, और दूसरे कौन से मटेरियल होते हैं, जो डायरेक्टली टूट जाते हैं. तो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं ब्रिटल, प्योर ब्रिटल मटेरियल, और एक होते हैं डक्टाइल. डक्टाइल में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिसिटी होती है, राइट? और ब्रिटल में प्लास्टिसिटी नहीं होती है. बट इंजीनियरिंग मटेरियल्स जैसे मेटल है, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, मतलब दोनों उसमें पाए जाते हैं, इलास्टिसिटी भी होती है, प्लास्टिसिटी भी होती है. अभी देखेंगे हम लोग फिर से. ओके, so it is usually expressed or measured in terms of maximum load per unit area. मैंने बताया अभी, maximum strength और ultimate strength is known as, it is known as ultimate or maximum strength that a material can withstand without failure, and it varies according to the type of loading. Loading change होगा तो उसका नाम बदलता जाएगा. ठीक है, further the strength is divided into three types. There are, first is tensile, मैंने बताया था. टेंसाइल जैसे मटेरियल है, मैंने उसको ऊपर और नीचे सेम फोर्स से खींचा तो ये टूटेगा, या फिर जिस वैल्यू पे टूट जाएगा, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, राइट? देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल कम, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट स्क्वीजिंग, कंप्रेसिव स्क्वीजिंग और लोड विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. यू कैन see that if we apply the forces in just opposite direction as we have seen in the tensile, both are compressing this material, then the maximum value where the material is going to be failed or fractured, that is known as the compressive strength. आ रही बात समझ में? Then shear strength, the ability of a material to resist transverse load. The ability of the material to resist the transverse load. I will show you what is the meaning of transverse load. That is loads tending to separate or cut the material
इज कॉल्ड shear स्ट्रेंथ। ठीक है, आप चलिए एक एग्जांपल लीजिए और इमेजिन कीजिए थोड़ा। एक इरेजर है मेरे पास, ठीक है, इरेजर है, ये इसका लेंथ है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, और ये है क्रॉस सेक्शन। अगर हम फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, और यू कैन डायरेक्टली कैन से perpendicular forces, right? If we apply the force which is parallel to this area, then that load is known as shear stress, shear force, right? Transverse load. It is known as a shear or transverse load or shear loads. Shear loads. Both are same. अब ये बताइए, अगर इस इरेजर को मुझे कट करना है, इस इरेजर को कट करना है दो पार्ट्स में, क्या करेंगे आप? क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे बच्चों? यहां से कट करना है इसको, क्या करेंगे आप? खींचेंगे कटर का यूज करेंगे, भाई, कटर का यूज करेंगे सर। कटर का यूज करेंगे, ब्लेड यूज कर सकते हैं। Yes, sir. ब्लेड आप कैसे अप्लाई करोगे इसके ऊपर? ब्लेड लगाओगे ऐसे और प्रेस करोगे ऐसे, ठीक है, ये इसके सरफेस पे आएगा और कट करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर देगा, राइट? करेक्ट, दो पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो आपने फोर्स कैसे लगाया है? एरिया के पैरेलल, राइट? और ये फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, फ्रैक्चर हो चुका है। तो आपने कितना फोर्स लगाया? फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया, द एरिया ऑफ फेलियर, जहां पे फेलियर हुआ है उस एरिया, डिवाइड बाय दिस एरिया, एंड मैक्सिमम फोर्स आपने जितना लगाया है, एफ मैक्स इक्वल्स टू बोलते हैं shear strength, and shear strength is denoted by tau. Okay, compressive strength is denoted by sigma c, tensile strength is denoted by sigma t, but it is strength, so we have to apply s, tensile strength, right? Sigma tensile strength, and this is cs, compressive strength, and this is shear strength, tau s. Tau is itself is known as a shear, so shear strength can we say that it is shear strength. Okay, तो देखिए आप, जैसे ये दो प्लेट है, दोनों प्लेट को रिविट से, सपोज एक बोल्ट है, या फिर आप रिविट समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, रिविट नहीं समझिए तो अगर बोल्ट समझें, अगर बोल्ट लगाया गया है ऐसे, नट और बोल्ट लगाया गया है और इसको बांध दिया गया है, अब मैं इस पे फोर्स लगाऊं इधर और एक इधर, तो ये मटेरियल कहाँ से टूटेगा बताइए जरा? ए बी सी, कहाँ से टूटेगा? मटेरियल है हमारा कौन, जिस पे फोर्स लग रहा है? ये है मटेरियल, ये मटेरियल हमारा, ये जो मैं रेड कलर कर रहा हूँ। सर सेंटर से, सेंटर मतलब ए बी और सी। बी बी, देखिए ये बी जो मटेरियल है ये हमारा ऐसे, ठीक है, हम एक चीज पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे और इधर लगा रहे हैं इस पे ऐसे, ठीक है, इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और इस यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये मूव नहीं हो रहे हैं सब, तो फ्रैक्चर इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, राइट? इन दोनों के बीच में ही होगा। ओके, so this is and this force is parallel to the cross section area of this bolt, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन होगा ऐसा, इसका ऐसा ही क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर,
ठीक है, वो पैरेलल है उसके. So the strength is defined for this type of loading is shear strength. Okay, you can see these images also. The tension में क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा. कंप्रेशन में क्या हो रहा है, बर्स्टिंग हो जा रही है, दिख रहा है. और shear strength में ये ब्लेड और इरेजर को आप याद कर सकते हो कि कैसे फ्रैक्चर हो रहा है. ओके, स्टिफनेस, it is the ability of the material to resist deformation or deflection under the load. It is the ability of the material to resist deformation or deflection under a load. ठीक है. Within elastic limit, stiffness is measured by the modulus of elasticity. We have understood from the elasticity in the previous lecture that elasticity is also the same thing. डिफॉर्मेशन को रसिस्ट कर रहा है, डिफॉर्मेशन को रसिस्ट करना. ठीक है. बट विद इन इलास्टिक लिमिट अगर बात की जाए, विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब वो लिमिट जहां पे हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन बने स्ट्रेस और स्ट्रेन में. ओके, सो इन दैट केस द इलास्टिसिटी बिकम्स स्टिफनेस. ओके, एज यू कैन सी दैट इन दिस डायग्राम, which is having more stiffness, which is having more stiffness. बताइए किसके पास स्टिफनेस ज़्यादा है? अरे भाई, मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है, ग्रीन या ग्रे? Which material is having more stiffness? Green material और grey material? ग्रे. कौन ज़्यादा असिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन को? Gray. ग्रे. Gray. A. A is greater than B. Okay, we are talking about stiffness, right? Elasticity हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग ये. The ability of the material to deform under and return to its original shape and size when the load is removed is called elasticity. ये हमारे पास एक मटेरियल है, इस पे हमने लोड अप्लाई किया, फोर्स, जैसे ही फोर्स हटाया ये once again it will comes back to its original shape and size. ध्यान रहे, शेप और साइज दोनों सेम हो जाने चाहिए. ठीक है, शेप और साइज दोनों सेम हो जाने चाहिए. जैसे अगर मैं ये बोलूं, एक सर्कुलर बार है, इस पे मैंने एक मोमेंट का फोर्स लगाया, ये बेंड हो गया, परमानेंटली बेंड हो गया ये. ठीक है, इसकी लेंथ अभी भी उतनी ही है. ऐसे अगर लेंथ चेक किया जाए, इसका डायामीटर अभी भी उतना है. तो इसका क्या चेंज हो गया है? साइज. बट शेप क्या हो गया है? शेप बदल गया है. ठीक है, तो ये इलास्टिक नहीं है क्योंकि इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है. अब फोर्स हटा रहा हूँ तब भी ये ऐसा ही है. ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है, अब चेंज वापस नहीं आने वाला है, तो ये इलास्टिक नहीं है. राइट. अब अगर आप सिर्फ साइज चेक करके बोल दोगे कि इलास्टिक है ये क्योंकि साइज वही है अभी इसका, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी करेक्टेड. तो करेक्ट क्या होगा? शेप और साइज के साथ आपको चेक करना होगा कि उसका शेप और साइज फिर से वापस आ चुका है क्या. ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी. द प्लास्टिसिटी इज जस्ट अपोजिट टू द इलास्टिसिटी. इफ अ मटीरियल, जैसे ये अब मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ, सेम मटीरियल वी आर सेम डिफरेंट मटीरियल वी आर गोइंग टू टेक for this example, means plastic material. If we apply a force, okay, and then remove the force, it will not come back to its original shape and size, right? Then that type of material is known as plastic material. This is elastic and this is plastic. ओके, आ रही बात समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. अब देखिए, अब कुछ को रिलेट होगा एक दूसरे से. डक्टिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी डिफॉर्म प्लास्टिकली. मतलब ये प्लास्टिक का ही एक पार्ट है, प्लास्टिकली बोला जा रहा है.
कि डिफॉर्म हो जाए प्लास्टिकली विदाउट रप्चर. रप्चर और फ्रैक्चर बोथ आर सेम. विदाउट रप्चर अंडर टेंसाइल लोड. अंडर टेंसाइल लोड. Due to this property, material can drawn out into the fine wire without fracture. ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर. देखिए एक रॉड है, डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे. एक ज्यादा डायमीटर का एक रॉड लिया और इसको थोड़ा सा एंड पे, ये जैसे देखिए ये मैंने मटेरियल लिया और उसके एंड पे थोड़ा सा डायामीटर किसी भी तरीके से कम कर दिया. ठीक है, अब इसको इसमें इंसर्ट किया और खींचे जा रहे हैं. पुलिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. क्या बनता जाएगा? वायर बनता जाएगा. Am I right? इसको खींचे जाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, खींचे जाएंगे तो ये वायर बनता जाएगा. तो वायर तभी बनेगा ना जब इसमें फ्रैक्चर ना हो लेकिन डिफॉर्मेशन होता रहे. फ्रैक्चर ना हो, डिफॉर्मेशन हो. कौन सा डिफॉर्मेशन? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. फ्रैक्चर और फेलियर में अब समझ में आ रहा होगा आपको. फेलियर हो जाए बट फ्रैक्चर ना हो. Am I right? Yes, sir. So that type of property is required or not required? मटेरियल का फेल होना अच्छा है या खराब है? खराब. खराब है. देखो बोल दिया इसने खराब है. मुझे वायर नहीं चाहिए क्या तुमको? बेटा वायर नहीं चाहिए क्या आपको? बेटा ये कंफ्यूजन अभी दूर करना पड़ेगा अभी कभी. यस और नो. अभी जिसने बोला है खराब है. डक्टिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डक्टिलिटी इज द टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी, बट प्लास्टिसिटी विद इन फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पॉइंट से पहले फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, तब तक हम फोर्स लगाएं और ये वायर में कन्वर्ट होता जाए. जितना ज्यादा वायर बना देगा एक मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर, we can say that that material is very much ductile. आ रही बात समझ में? Yes. I need majority of yes, then we will move. Yes, sir. This ductility Yes, sir. property is Yes, sir. this ductility properties Yes, sir. is desirable or non desirable? Sir, desirable. Desirable. देखिए मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? किसी कॉमन पर्सन से पूछ सकते हो, आम आदमी से पूछ सकते हो कि सबसे ज्यादा चीजें क्या यूज करता है, वो हाई स्ट्रेंथ वाली यूज करता है या कम स्ट्रेंथ वाली यूज करता है? तो हमको पता होगा कि हमारे आसपास घर के अंदर कितने सारे मटेरियल हैं, मेटल्स हैं. ठीक है, आपने देखा होगा उनका शेप बदल गया है, साइज बदल गया है. मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे ग्लास है, ग्लास का शेप बदला हुआ है कि नहीं बदला हुआ है? क्या नेचर में ऐसा पाया जाता है क्या? इस तरह से ग्लास, स्टील की ग्लास नेचर में पाई जाती है क्या ऐसी? नहीं सर. नहीं. उसका शेप बदला गया होगा. इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ कम है ना, तभी तो शेप बदल दिया आपने. तो मैक्सिमम हमारे आसपास जितने भी मटेरियल हैं उनकी स्ट्रेंथ कम है. कम होगी पहले, बनाने से पहले. उसको बनाने के बाद स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई गई है वो हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट में, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका. ठीक है, तो स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए स्टार्टिंग में जब हम उसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे लोहार है, वो आपको पता होगा कि जो लोहा को वो हैमर से पीटता है शेप बदलने के लिए, तो क्या करता है उससे पहले? हीट करता है. हीट करता है. हीट करके क्या करता है? कमजोर करता है मटेरियल को. पहले हीट करने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसके कई सारे बॉन्ड दूर हो जाते हैं, मेटल्स पहले से ही दूर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है. अनस्टेबल होगा तो वो शेप बदलने में आसानी होगी. ठीक है, so material must be having less strength because we are going to change the shape and size of whatever we are going to use the material as an application. Okay,
So the ductility is the you can write in the sense it is the property by virtue of material by virtue of which it can be drawn into the wire. वायर में कन्वर्ट किया सकते हैं किया जा सके, और ये अप्लाई ये तभी हो सकता है जब हम उस पर टेंसाइल फोर्स लगाएं बट विदाउट फ्रैक्चर. ओके. मैलेबिलिटी, जैसे मैंने अभी प्लेट की बात की, प्लेट पे क्या, जैसे ये ब्लॉक है, डायग्राम दिखा देते हैं आपको. जैसे ये नाइफ है, ये नाइफ कैसे बनेगा? कंप्रेस करके लिखा हुआ है इसमें. इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली. वंस अगेन द प्लास्टिकली इज कमिंग. प्लास्टिकली मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन. मतलब अब ये जो डिफॉर्मेशन हो चुका है वो हमेशा के लिए है, अभी अपना शेप और साइज बदलने वाला नहीं है. विदाउट रप्चर अंडर कंप्रेसिव लोड. यहाँ पे कंप्रेसिव लोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स कैन हैमर्ड एंड रोल्ड इनटू द थिन शीट. चलिए ये बताइए कितने लोगों ने शुगर केन के जूस पी रखा है? देखा है ना आपने? शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस आपने चलिए पिया नहीं होगा, आपने देखा होगा कि कैसे जूस बनता है उसका. यस सर. 2 रोलर होते हैं. रोलर में हमने गन्ने को इंसर्ट कराया. स्टार्टिंग में गन्ने बहुत ही अच्छे लग रहे थे, रॉड जैसे लग रहे थे. बाहर कैसे निकल जाते हैं? प्लेट की तरह. क्या कर रहा है रोलर? कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा है दोनों तरफ से, ठीक है. अंडरस्टूड? But I am not going to say that is the engineering materials. That is not engineering materials. If you replace this ganna, means sugar cane, by a block, metallic block, ठीक है. तो ये जब रोलर के अंदर जाएगा, तो इसमें से क्या निकलेगा? शीट्स. ओके. अगर ये फ्रैक्चर के बिना शीट निकला है तो इसको बोल सकते हैं मैलेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, राइट. मैलेबिलिटी इसकी ज़्यादा है. तो प्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ज़्यादा होंगी. ऑब्वियस ही बात है. क्यों? फाइन. टफनेस. व्हाट डू यू मीन बाय टफनेस एंड हार्डनेस? आर दे डिफरेंट और सेम? Are they different or same? एग्जाम जब होता है, पेपर में कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता क्या है, तो आप क्या बोलते हो? पेपर क्या है, एग्जाम क्या था? टफ था. हार्ड नहीं था. एग्जाम टफ था, हार्ड था? कुछ लोग हार्ड बोलते हैं कि नहीं? सेम था सर. जो बोलता है वो बताए क्या बोलता है, हार्ड या टफ? तो दोनों सेम ही है क्या? No, sir. No. What is the meaning of hardness? What is the meaning of toughness? अब मैं आपको आपके मतलब आपको अगर मैं एक मटेरियल, एक मेटल दूं, ठीक है. अब वो मेटल का हार्डनेस पता करना है, तो हार्डनेस के लिए क्या करोगे? आप सरफेस को टच करोगे. क्या करोगे? हार्ड है तो क्या करोगे? सरफेस को चेक करने के लिए हार्डनेस. टफनेस को आप चेक करने के लिए क्या करोगे, और हार्डनेस को चेक करने के लिए क्या करोगे? अच्छा, आपके मोबाइल फ़ोन में आपको पता है गोरिल्ला ग्लास, बहुत सारे टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किए जा रहे हैं, वो सब हार्ड है या टफ है? टफ है. देखिए, अब वो मटेरियल है, उसमें हार्डनेस भी है, उसमें टफनेस भी है. उसमें हार्डनेस भी है और टफनेस भी है. अभी देखेंगे हम लोग. पहले हार्डनेस टफनेस समझ लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें है.
Okay, so what is toughness? Toughness is defined as a energy, right? It is energy stored by the material. आपको पता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है, तभी तो वो अनस्टेबल बनता जा रहा है। पहले मटेरियल क्या था? स्टेबल है। एक मटेरियल ऐसे रखा हुआ है, ये स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल है। अब हमने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, अब ये अनस्टेबल होगा, इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली मूव करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे कि मुझे तोड़ा जा रहा है, तो अनस्टेबल हो गए। तो अनस्टेबल हो गए तो अनस्टेबल तभी होता है जब इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मतलब इसका मतलब एनर्जी ये गेन करते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट बढ़ती जा रही है। ओके, तो एनर्जी इसमें गेन होती जा रही है। फ्रैक्चर से पहले जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्रैक्चर से पहले जितनी भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज नोन एज टफनेस। ओके, दैट इज नोन एज टफनेस, राइट? ये बताइए, जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा है उसका टफनेस ज्यादा होगा या कम होगा? Anyone please? Ductility high, then we can say that toughness is Hi, sir. high. Good, very good. अब ब्रिटलनेस देखेंगे। ब्रिटलनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सडन फ्रैक्चर विदाउट एनी विजिबल परमानेंट डिफॉर्मेशन। विजिबल परमानेंट डिफॉर्मेशन, ओके। सो ब्रिटलनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट ये चॉक के लिए नहीं है, चॉक को आप इमेजिन कर सकते हो। चॉक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ओके। जब भी हम इसको खींचते हैं तो वो सडनली फ्रैक्चर होता है, उसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई इंडिकेट नहीं करता है कि उसका लेंथ बदल रहा है, बढ़ रहा है, अब टूटने वाला है, टूटने वाला है, ये नहीं बोल सकता वो जस्ट टूट जाएगा। So glass material भी Glass material is also brittle material. Good. Ceramics are brittle materials. Maximum ceramics are brittle materials. Okay. It will not show any elasticity. Sorry. It will not show any plasticity. Sorry. प्लास्टिसिटी शो नहीं करेगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसमें, सीधे फ्रैक्चर होगा। ओके, तो ये कहाँ पे यूज होगा ब्रिटल मटेरियल? आपने देखा होगा हैंड पंप, पुराने हैंड पंप जो घर में लगाए जाते थे, उनका जो मटेरियल होता है वो होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, और उसका नाम है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। अब ये ब्रिटल मटेरियल क्यों बनाया जाता है? देखिए क्या होता है कि अगर उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, अंदर किसी भी पार्ट का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, तो उसका शेप और साइज बदल जाएगा। तो वो हो सकता है कि अंदर के कंपोनेंट के साथ वो स्टिक हो जाए, फंस जाए, ठीक है, जैम हो जाए। तो जैमिंग को निकालना बहुत ही मुश्किल है। उससे अच्छा है मटेरियल टूट जाता तो आसानी से निकल जाता, ठीक है। दैट्स वाई वी नीड cast iron, or we can say brittle material, where we need to avoid the jamming. अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो हम जैमिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। जैमिंग को क्यों अवॉइड करना चाहते हैं? कई सारे कंपोनेंट हैं तो वो एक दूसरे के साथ फंस सकते हैं अगर उनका शेप और साइज बदल गया तो अगर एक कंपोनेंट सही था और दूसरा कंपोनेंट खराब हुआ और उसके साथ जैम हो गया, ठीक है, जैम हो गया, तो ये दोनों चीज़ खराब हो जाएंगी। आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे, इसको भी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, आपको दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। in this kind of application we need to use brittle material. At that we need, मतलब हम ये चाहते हैं कि मटेरियल फ्रैक्चर हो जाए, डायरेक्ट फ्रैक्चर हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो, राइट। तो ये दिख रहा है आपको? टफनेस के लिए मैंने दिखाया यहाँ पे, और टफनेस, और एक है ब्रिटल। यहाँ पे प्लास्टिक टफनेस मटेरियल की ज़्यादा है, इसमें टफनेस मटेरियल की ज़्यादा है, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा विदाउट फ्रैक्चर। ये टूटा नहीं, लेकिन जैसे ही ब्रिटल मटेरियल को उस पर फोर्स लगाया गया, ये टूट गया। बहुत ही कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और ये टूट जाएगा,
नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इमेज से समझ में आ रही है आपको? इमेज ये टूट नहीं रहा है, सिर्फ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी एनर्जी अभी और भी ऑब्जर्व करेगा, तब जाके ये टूटेगा। समझ में आ रहा है? इसकी टफनेस कम है या इसकी टफनेस, ये 1 लिख रहा हूँ मैं, ये 2 लिख रहा हूँ, किसकी टफनेस ज्यादा है? 1 की 1 वाली 1 की टफनेस ज्यादा है। गुड। 1 ब्रिटलनेस किसकी ज्यादा है? 2 की सेकंड वाली 2 की। सेकंड वाली ठीक है, टफनेस Second. और ब्रिटलनेस। ठीक है, गुड। Next is hardness. Hardness is, it is defined as the ability of the material to resist scratching or indentation by another hard body. Hardness is directly related to the strength. अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अभी देखिए कौन सा मटेरियल ज़्यादा हार्ड है। अगर मैं ज़्यादा हार्ड वाले मटेरियल से इसको कंप्रेस कर रहा हूँ सरफेस पे, ये हो सकता है डायमंड हो, ये स्टील है, और ये एल्यूमिनियम, सॉरी ये स्टील है और ये एल्यूमिनियम है। तो हार्डनेस स्टील की ज़्यादा होती है। आप देख रहे होंगे कंप्रेस कर रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा इंडेंट हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडेंट हो चुका है। ठीक है, तो हार्डनेस किसकी ज़्यादा है? स्टील स्टील की। ओके, तो हार्डनेस इज जस्ट सरफेस प्रॉपर्टी। जैसे हमने अपनी अभी मैंने बात किया था कि गोरिल्ला ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास, उसकी क्वालिटी क्या है, आप क्यों यूज़ कर रहे हो उसको, आप क्यों यूज़ कर रहे हो, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है बताइए जरा, कोई बताए। Which class is in next class? Next class is which subject? Sir, manufacturing practices. मैन्युफैक्चरिंग पर्पज की वजह से। Sir, next class is of manufacturing practices. अच्छा, लैब है, लैब है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is any faculty has assigned this subject to start? No, sir. नो सर अभी No, तक sir. Okay, it will started in the from the next upcoming class. Today, I think no faculty is available. Let me ask. Wait. अरुण सर, बोलो, वर्कशॉप की क्लास नहीं चल रही है क्या? वर्कशॉप की कौन सी लेनी है मेरे को यार? तो बच्चों ये बताइए, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो गोरिल्ला ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास या जो गोरिल्ला ग्लास हम लोग यूज करते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है हमारा यूज करने का? to protect spawn.
और प्रोटेक्शन करना सर, स्क्रैच वगैरह यार। स्क्रैच, गुड। और आपने देखा होगा सर कि ग्लास में जब प्ले को ब्रेक होने से बचाने के लिए। भी ये फोन हमारा मान लो कि बाई एक्सीडेंटली अगर गिर जाता है तो सबसे पहले वही ग्लास टूटता है, ठीक है, वो ग्लास टूटता है और हमारे जो मेन स्क्रीन है उसको तोड़ने से बचा लेता है, ठीक है। ये कैसे ये पॉसिबल है? क्या हो सकता है उस पे जो फोर्स हमने गिरने की वजह से जो फोर्स लगा है गोरिल्ला ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास पे, वो फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है उधर स्क्रीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक लेयर जो है ग्लास की, ठीक है, इसके पीछे हमारे मोबाइल का स्क्रीन है, इसके पीछे हमारे मोबाइल का स्क्रीन है, राइट, इसके पीछे हमारा मोबाइल का स्क्रीन है। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा तो सारी एनर्जी इस टेम्पर्ड ग्लास ने ले ली टू गेट इटसेल्फ फ्रैक्चर्ड, अपने आप को फ्रैक्चर करने में सारी एनर्जी लगा दी। तो मटेरियल का पहले तो आपने बताया स्क्रैचिंग से बचाना, या फिर आपने अगर की रिंग रखी हुई है, की रखी हुई है अपने पॉकेट में और उसमें आप फ़ोन रख रहे हो तो उससे सरफेस को बचाना, इंडेंटेशन से बचाना। तो सरफेस पे जो बचाने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नोन एज हार्डनेस। तो सरफेस के हार्डनेस बढ़ाता है पहले तो, ठीक है, और बाकी सारी जो एनर्जी मिली है तोड़ने के लिए वो सारी एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो हैविंग हाई टफनेस ऑल्सो, ठीक है, सारी एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो सारी एनर्जी मिली है तो फ्रैक्चर तो होगा ही, कभी ना कभी होगा ही, चाहे कितना भी टफ मटेरियल हो तो फ्रैक्चर तो होगा ही, लेकिन सारी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो इट इज हैविंग अ टफनेस एज वेल एंड ऑल्सो इट इज हैविंग हार्डनेस। हार्डनेस सरफेस प्रॉपर्टी है, टफनेस इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। टफनेस अंदर की प्रॉपर्टी, क्योंकि फ्रैक्चर हो रहा है तो पूरे मटेरियल का थ्रू आउट द फ्रैक्चर होगा, थ्रू आउट द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल फ्रैक्चर होगा। तो सरफेस पे जो आप इंडेंटेशन स्क्रैचिंग की बात कर रहे हो दैट इज ऑल्सो फेलियर। सरफेस पे अगर स्क्रैचिंग हो रही है तो मतलब वहां से मटेरियल रिमूव हो गया होगा, क्यों हो गया होगा ना, स्क्रैचिंग हो गई तो वहां से मटेरियल रिमूव हो गया होगा, मतलब वहां पे फ्रैक्चर हो चुका है। तो सरफेस पे अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज हार्डनेस। अगर अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर से पूरा थ्रू आउट द मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है, दैट इज नोन एज टफनेस। ओके, देन क्रीप, the slow and progressive deformation of the material with time at a constant stress is called creep। जब भी हम किसी मटेरियल को किसी टेम्परेचर पे रख देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो उस फिनोमिना को अगर वो उस टाइप का स्ट्रेंथ अगर किसी मटेरियल के पास है तो उसको बोल सकते हैं कि उस मटेरियल के पास कौन सा स्ट्रेंथ है, क्रीप स्ट्रेंथ। तो क्रीप इज जस्ट अ फिनोमिना। अगर इस फिनोमिना को कोई मटेरियल बहुत ही अच्छे से बहुत इस लोडिंग में, लोडिंग क्या क्या है, टेम्परेचर और एक कांस्टेंट फोर्स। टेम्परेचर भी अप्लाइड है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, लेकिन उस केस में भी अगर स्ट्रेंथ अगर किसी मटेरियल ने दिखा दिया तो दैट स्ट्रेंथ कैन बी नोन एज क्रीप स्ट्रेंथ। ओके, कुछ कर्व है, ये आपको उतना ज़्यादा समझना नहीं है डीपली, बट वी कैन लर्न इट दैट स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन है तो स्ट्रेन जब हम लोडिंग, फोर्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हमने और फोर्स कॉन्स्टेंटली लगाए जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और सडनली फ्रैक्चर हो जाएगा, सडनली स्ट्रेन बढ़ जाएगा और फ्रैक्चर हो जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है आपको, पहला इमेज सफिशिएंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जोन होते हैं इसमें। प्राइमरी में स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक कांस्टेंट स्लोप है यहाँ पे। उसके बाद सडनली फ्रैक्चर होने के लिए क्या होगा, स्ट्रेन अचानक से बढ़ेगा और फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ क्रीप फिनोमिना। नेक्स्ट इज फटीग। फटीग देखिए, फटीग फेलियर ऑफ द मटेरियल अंडर रिपीटेड और रिवर्सल स्ट्रेस इज कॉल्ड फटीग। आपको पता होगा अगर मैं किसी रॉड को एक बार ऐसे बेंड करूं, मतलब ऐसे हो जाए, और अगली बार इसको ऐसे बेंड करूं, ठीक है, और ये बार बार करता जाऊं, तो क्या होता है, जल्दी मटेरियल टूट जाता है कि नहीं यहाँ से, यस सर।
टूट जाता है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। अगर मैं बस एक ही तरफ से मोड़ के इसको तोड़ना चाहूँ तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर इसी तरह से सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट अप्लाई करके अगर इसको बार बार रिपीटेटिव फोर्स लगाऊं तो ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फटीग लोडिंग। ओके, एंड वंस अगेन, if the material is withstand with this type of fatigue loading, so we can say that that material is having high fatigue strength, right? तो जो हमारा हमने जैसे ऐसे फोर्स लगा के इसको तोड़ रहे थे तो ये वाली स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन फटीग स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि वो उसमें रिपीटेड फोर्स लग रहे हैं। तो फोर्स ऐसे लगते हैं कि स्ट्रेस ऐसे जनरेट हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इस तरह की लोडिंग को बोलते हैं फटीग लोडिंग या फिर साइक्लिक लोडिंग। ओके, दो चीज देख लीजिए। मशीन एबिलिटी, मैंने मशीन एबिलिटी बताया था कि दो ब्लॉक, एक ब्लॉक है, इसको अगर दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, मुझे कुछ कोई शेप बनाना है, सपोज इसको शाफ्ट बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ब्लॉक को कट करना पड़ेगा। कट करके मटेरियल को रिमूव करके ये बन सकता है। तो मटेरियल को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कोई कटिंग टूल होगा, तो कटिंग टूल से इसको कट करेंगे, तो कटिंग टूल से यूज मेटल टू मेटल कांटेक्ट होंगे, बहुत सारे हीट जनरेट होगी, बहुत सारे रफनेस सरफेस पे बनेंगे। लेकिन अगर ये प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाता है तो उस मटेरियल को बोलेंगे वो मशीनेबल है, मशीनिंग करने के लायक है। ठीक है, तो उसकी मशीनेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आसानी से हो जाता है ये काम तो उसको बोलते हैं मशीनेबिलिटी, उसके पास मशीनेबिलिटी है। ओके, इन द सेम वे वेल्डिंग अगर किसी मटेरियल का बहुत ही आसानी से हो जाता है, मतलब देखिए कई सारे मटेरियल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अगर वेल्डिंग करते हैं तो सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बनने लगते हैं। सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बनने लगेगा तो मटेरियल सरफेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और अंदर बहुत कमज़ोर है, तो इनहोमोजीनियस मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि एल्यूमिनियम इज़ नॉट गुड वेल्डेबल मटीरियल। ओके, एल्यूमिनियम इज़ नॉट अ गुड weldable material. Aluminium is not a good weldable material, but still we can say that is very good weldable material, because स्टील में जब कोरोजन होता है तो वो कब होता है, मॉइस्चर हो और एयर हो तब होता है। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे वेल्डिंग कर रहे हो तो उस समय कोई कोरोजन नहीं होगा और वो बहुत ही ईजिली वेल्ड हो जाता है। सो वी कैन से दैट स्टील इज वेरी गुड as far as weldability is concerned. Okay, so these are the type of the material you will be asked in the exam for 5 to 6 engineering materials. You can write any one of them. Okay, but you have to remember that you have to draw the figure or diagram. Okay, so you have to draw the freehand sketching. You have to practice of that. Okay, so thank you all. We will meet in the next lecture with next topics of the BME. Okay, एक बार अटेंडेंस दीजिए फिर से, राइट कैपिटल P in the chat box. I want to check who was not join the class on time.